Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. It is class 11th subject economics. And our today's topic is importance of statistics in economics. बेटा जहाँ तक स्टैटिक्स की इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है, मैंने कल भी आपको पढ़ाया कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स क्या है इकोनॉमिक्स में. तो इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर Tapat, a day might come when the Department of Economics in the universities will go out of the control of economic theoreticians and come under the control of statistical workshops in the same manner as the Department of Physics and Chemistry have come under the control of Department of Laboratories. Indeed, statistics has emerged as the lifeline of economics. जैसा कि बेटा आप जानते हो कि जैसे प्रोफेसर टपट के अल्फाजों के तहत, उसकी स्टेटमेंट के तहत जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में के लिए लेबॉरेटरीज के ज़रिए उसको समझाया जाता है, ठीक वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए भी कि वो दिन दूर नहीं जब इकोनॉमिक्स के लिए भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे. यानी इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए जो स्टैटिक्स के थ्योरेटिकल ये जो उसको छोड़ के जो यानी इसके भी प्रैक्टिकल्स का इनेकाद किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक्स हैज़ इमर्ज्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि ज़िंदगी है स्टैटिक्स के इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स जो है इंटायरली डिपेंड अपॉन स्टैटिक्स. और इसकी जो डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन, यानी उसकी वो कलेक्शन, यानी ये इसके फील्ड हैं, मुख्तलिफ फील्ड हैं इसके. और इसमें जो प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, यानी हम प्राइमरी सतह पे जो इंक्वायरी करते हैं, सेकेंडरी सतह पे जो इंक्वायरी करते हैं, हमारे आईओज जो होते हैं, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं they can be represented with the help of this statics. So it has a vital role in economics and is the lifeline of economics. So dear students, the following points highlight the significance of statistics. Number one is quantitative expression of economic problems. Expression of economic problems. इस ज़मीन में जो है consider any economic problem. For example, problem of unemployment. First task being an economist is to understand its magnitude through its initiative, quantitative expression. Between the years 1995 to 2010, percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 9.4%. Number two is intersectoral and intertemporal comparisons. Intersectoral and intertemporal comparisons. The students, from intersectoral comparisons we mean comparisons across different sectors of the economy, thus analyzing the problem of unemployment and across
and across rural and urban sectors of the economy, while inter-important comparison means understand of change of in the magnitude of the problem or time, and say different periods of the rural and urban unemployment. And number 3 is working out cause and effect relationship. Working out cause and effect relationship. That can suggest to the government to adopt such measures as would increase the level of demand in the economy. Number 4 is construction of economic theories or economic models. Construction of economic theories and economic models, such as more is purchased when price falls. यानी इसमें कंस्ट्रक्शन जब हम थ्योरीज को करते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स के जरिए, तो हम जानते हैं कि जब हम जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा तब खरीदता है, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा गुड्स तब खरीदता है जब प्राइसेस में फॉल हो, जब प्राइसेस में कमी हो. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स के जरिए. तो नंबर 5 इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ये FOR है, FAR नहीं, FOR, forecasting, studying the behavior of price level over the several years can make a statistical forecasting in the near future. Number 6 is formulation of policies. Formulation of policies. How does the finance minister decide to increase or decrease taxation? So as a source of government revenue, यानी पॉलिसीज को इसलिए बनाया जाता है ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करे कि किस चीज़ में कमी करने की ज़रूरत है, किस चीज़ में ज़्यादा करने की ज़रूरत. अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रेवेन्यू को भी तो बढ़ाना है, और अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना है उसी हिसाब से. तो इसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं. तो नंबर 7 है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. Economic equilibrium. Economic equilibrium, how does the finance? No, it is telling us how profit of the producers are maximized. इन्हें प्रोड्यूसर जो है, जो हमारी ये चीज़ें बनाने वाले हैं, कि उनका प्रॉफिट वो कैसे मैक्सिमाइज हो, और हाउ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या कि ये जो कंज्यूमर है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल हो. यानी ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. एक वोस्ट फील्ड है, एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसका इकोनॉमिक्स में एक खासा रोल है. खासा ही क्यों, बल्कि अगर हम ये भी कहें कि इकोनॉमिक्स जो है ये डिपेंड है इसके ऊपर, क्योंकि हम इसीलिए तमाम इंटरप्रिटेशन ऑफ जो डाटा हम करते हैं वो थ्रू ओनली ऑन बिहाफ ऑफ दिस statistics. So it is most important, very important for economics. जैसा कि आपने अभी भी पढ़ा कि प्रोफेसर टेपट ने क्या कहा. उसने कहा जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेबोरेटरीज में समझाया जाता, लेबोरेटरीज के जरिए, प्रैक्टिकल के जरिए समझाया, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को भी इन्हीं प्रैक्टिकल के जरिए समझाया जाएगा. तो इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है.
इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। और आपसे ये गुजारिश है कि आप घर बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।